Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333386. हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 12 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल पहले हम अपने करंट अफेयर्स से स्टार्ट करेंगे फॉर द रिवीजन पर्सपेक्टिव। जो दोस्त हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं उनके लिए सजेशन, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप पेन पेपर साथ में लेके बैठिए और जो भी चीज़ें आज समझ नहीं आती उनको अलग से नोट भी करना है। फिर जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए भी यही सेम सजेशन रहेगा कि नोट्स ज़रूर बनाना। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्ज़ाम से पहले आपके रिवीजन में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए पहले अपने रिवीजन करंट अफेयर्स पे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड हिंदी डे की। कब ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे? हम 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व करते हैं, जो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये करंट अफेयर याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमूल कंपनी। हम जानते हैं बहुत बड़ी डेयरी कंपनी है। इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे RS सोडी, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है और अब जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे अमूल के, जयन मेहता, उनको इंटर्म MD का चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया का फास्टेस्ट पेमेंट ऐप कौन सा है? तो वो रहेगा आपका इंडिया का फास्टेस्ट पेमेंट ऐप पेरप। नेक्स्ट आ जाता है फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी एक यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन को लॉन्च किया गया है। ये ग्लोबल सिटी कैंपेन बेसिकली क्या है? 100 दिन लंबा ये आपका कैंपेन रहेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि आपकी फरवरी में होगी, अभी उससे पहले इसको लॉन्च किया गया ताकि जो भी अर्बन बॉडीज़ है ना, जो भी सिटीज़ हैं आपकी यूपी में, उनके स्टैंडर्ड को बढ़ाया जा सके बेसिकली। ठीक है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, जो पूरे विश्व में अगर हम देखें बड़ी बड़ी सिटीज़ हो गई, जैसे अभी लंदन बेस्ट सिटी आई है, इसने टॉप किया है। मुंबई का भी लिस्ट में नाम है, लेकिन टॉप पे कौन सी रही? लंदन। लंदन के लेवल की आपके सिंगापुर, टेल अवीव, जो इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जो साफ सिटीज़ हैं, उनके वहाँ पे आप देखेंगे जो पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, पूरे अच्छे से बनी होती हैं ये सिटीज़। तो अगर सिटी अच्छी होगी ना तो वो आप देखेंगे लोगों को अट्रैक्ट करेगी। तो इसीलिए यूपी को एक अर्बन सिटीज़ जो है वहाँ पे ग्लोबल स्टैंडर्ड तक उन्हें ले जाने के लिए ये ग्लोबल सिटी कैंपेन लॉन्च किया गया था। 100 दिन लंबा ये आपका कैंपेन रहेगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं प्रणेश की। प्रणेश हमारे इंडिया के 79th ग्रैंड मास्टर बने हैं। इन्होंने अभी रिल्टन कप को जीता और रिल्टन कप को जीतने के बाद
ये 79th ग्रैंड मास्टर बन गए इंडिया के। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। फिर आ जाता है आरबीआई। आरबीआई के द्वारा अभी रिसेंटली उत्कर्ष 2.0 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब से कब तक? 2023 से 2025 तक ये आपका मिड टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क उत्कर्ष 2.0 को लॉन्च किया गया है। फिर आ जाते हैं इसके बाद वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम। आई रिपीट, वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम कहां पर है? यह त्रिवंतपुरम केरला में। कहां पर रहेगा? त्रिवंतपुरम केरला में वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम। फिर इसके बाद बात करते हैं कैनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलवी प्रभाकर जी की। इन्होंने अपनी पोजीशन मतलब बेसिकली रिटायरमेंट करके दी, इनकी रिटायरमेंट हो गई क्योंकि इनका टाइम पीरियड पूरा हो गया था। ठीक है, इनकी जो 60-62 साल एज होती है उन पे यहाँ पे इन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली। फिर आ जाते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ एक टाइप किया। बेसिकली इस एग्रीमेंट में 2275 करोड़ रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करेगा त्रिपुरा गवर्नमेंट को, ताकि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है स्टेट का उसको बेटर किया जा सके। आई रिपीट, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है त्रिपुरा स्टेट का, उसके लिए 2275 करोड़ रुपए दिए गए। इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड त्रिपुरा गवर्नमेंट के बीच। फिर आ जाता है क्रोशिया। वो कौन सी कंट्री है जिन्होंने अपनी करेंसी अभी कूना को छोड़ा और यूरो को अडॉप्ट कर लिया? क्रोशिया। क्रोशिया ही शेंगेन जोन का अब मेंबर बन गया है। अब क्रोशिया से आप अगर दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं जो यूरोप कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस ट्रैवल करते हैं टू एंड फ्रो। नेक्स्ट न्यूज हम बात करेंगे एशिया के लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट की। अब बायोगैस है तो बायोगैस किससे बनता है? आपके जो वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, उससे आपका बायोगैस बनती है, जैसे मीथेन होती है इनमें। तो अगर इसी के अलावा कुछ और गैस देखें फिर न्यूज़ पे बढ़ेंगे, जैसे आ जाती है आपकी एलपीजी, सीएनजी, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सारी गैस होती हैं। फिर आपकी बायोगैस आ गई। अब फिर और फ्यूल्स क्या देख रहे हैं हम? आपका ग्रीन हाइड्रोजन देख रहे हैं आने वाले टाइम में। तो अभी तो हम बात करेंगे एशिया के लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायो सीएनजी और बायोगैस प्लांट की, जो कि पंजाब में अभी इसको इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा? हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इस प्लांट को बनाने के लिए, जो कि एशिया का लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट है जो कि पंजाब में है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगा है 220 करोड़ रुपए का, जो कि वर्बियो एजी एक कंपनी है जर्मनी की, बायो एनर्जी लीडिंग कंपनी है, उनके द्वारा 220 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए इंडिया के पंजाब स्टेट में, जहां पे वो एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायो सीएनजी प्लांट को डेवलप करने में लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ ये जो प्लांट है आपका SAT-80 सेटेट इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च किया गया, जो कि है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। अब ये स्टेट इनिशिएटिव क्या है? बेसिकली 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, अक्टूबर महीने में लॉन्च किया गया था कि हम कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को डेवलप करें फ्रॉम वेरियस वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारा जो बायो आप इसको ऐसे जैसे मैंने बताया ना, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो बायो रिलेटेड, जैसे आपका कूड़ा हो गया, आपका लेफ्ट ओवर्स फूड हो गया, आपकी सड़ती हुई क्रॉप्स हो गई, इनकी मदद से आपका जो डंक होता है आपका कैटल्स का, उनसे, इन सब चीज़ों से आपका ये बायोगैस बनती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को लॉन्च किया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट दर्शना जरदोश जी के द्वारा सिल्क मार्क एक्सपो लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में। इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखेंगे। इंडिया ने एक MOU साइन किया ईरान के साथ फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ सीफरर्स। सिडबी ने पार्टनर किया टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड के साथ टू फॉस्टर ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया हेल्थ फैसिलिटीज टू द नेशन। IREDA, इन्होंने साइन किया एक MOU विद महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड टू प्रोवाइड लोन्स फॉर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। गोदरेज एग्रोवेट की बात करें, इन्होंने MOU साइन किया असम, मणिपुर एंड त्रिपुरा के साथ फॉर ऑयल पाम कल्टीवेशन। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा एक इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च किया गया है पेंशनर्स के लिए, और इसका नाम क्या रहेगा, भविष्य। ठीक है, याद रखेंगे सबसे पहली चीज तो यही, भविष्य क्या है ये, ठीक है, एक इंटीग्रेशन विद भविष्य पेंशन सैंक्शन एंड पेंशन ट्रैकिंग सिस्टम रहेगा ये आपका। ठीक, अभी जो हम बात कर रहे हैं पेंशन ये लॉन्च करने की, ये पोर्टल, रीजन क्या है इसका लॉन्च करने के लिए, ताकि ईज ऑफ लिविंग में बढ़ावा दिया जा सके। अब अगर वेबसाइट होगी, पोर्टल होगा, तो हम जानते हैं उससे डिजिटाइजेशन होगी, और डिजिटाइजेशन होगी तो मतलब आप घर पे बैठे बैठे आप उन सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं जो सो एंड सो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब जो पेंशनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं बेसिकली। ठीक है, अब उनको क्या चाहिए, वो रिटायर हो गए तो उनको चाहिए कंफर्टेबल लाइफ, उनको चाहिए कि हमें कोई ज्यादा चिक 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 ना हो, हमें शांति से जिंदगी जीनी है और हमारे सारे काम भी होते रहें। तो इसी को एक और बेटर बेनिफिट देने के लिए, उसको ईज ऑफ लिविंग में कन्वर्ट करने के लिए, उस सारी प्रोसेस को पेंशनर्स की अब ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी गई। आपको पोर्टल लाया गया कि हम सारी चीज वहीं पे ऑनलाइन कराएंगे एंड वहीं से आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड किएंगे। आपको कोई भी दिक्कत होगी, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर। फिर ये जो पोर्टल है किसके द्वारा डेवलप किया गया था, एसबीआई बैंक के साथ कोलैब करके इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, फिर याद रखेंगे रिमेनिंग 60 पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक्स, ये भी आपका इंटीग्रेशन ज्वाइन करेंगे इन द भविष्य। और मैंने बताया भविष्य 9.0 वर्जन वाज आल्सो रिलीज्ड ऑन 18 अक्टूबर 2022 विद इंटीग्रेशन विद पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक्स। जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग फॉर अबाउट 900 ऑफिशियल, जो कि अगले एक साल में रिटायर होने वाले हैं। इसी के साथ साथ अनुभव अवार्ड्स फॉर 2019-20, 21-22 और 19-20, 20-21 और 21-22 के लिए आपके अनुभव अवार्ड से भी सम्मानित अभी करा गया था। तो ये हो गई आपकी तीसरी न्यूज। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी इंडिया की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अभी एक एमओयू साइन किया ताकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को डेवलप किया जा सके विद टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएस बेस्ड स्टार्टअप जो कि है टीईवी। ठीक, टीईवी ट्रिटॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। उन्होंने अपने जो रिसोर्सेज हैं, उन्होंने अपनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल को डेवलप करने के लिए वो हेल्प करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। हाईली इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता रहा हूं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल ने एक अभी एमओयू साइन किया टीईवी के साथ, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है। और टीईवी क्या है, ट्रिटॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल। इन दोनों के बीच में ये एमओयू साइन हुआ ताकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को डेवलप किया जा सके। काफी इंपॉर्टेंट। अगर मैं टीईवी की बात करूं, ट्रिटॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो कहां पर है, भुज में। भुज में कहाँ, गुजरात। भुज कहां पर है, गुजरात में। ठीक है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहां रहेगा, खेड़ा में, जो कि कहां पर है, नियर अहमदाबाद इन गुजरात ओनली। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो किन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक एमओयू साइन हुआ फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड टीईवी। अगर मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करूं तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, वो हैं दिनेश कुमार बत्रा जी। कब फाउंड किया गया, 1954 में इसको फाउंड किया गया था। और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, बेंगलोर, कर्नाटका में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बीईएल, इन्होंने एक एमओयू साइन किया टीईवी के साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को डेवलप करने के लिए। हाईली इंपॉर्टेंट। क्यों हाइड्रोजन फ्यूल सेल, क्यों, क्योंकि अब हम ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से शिफ्ट करके क्या कर रहे हैं, नॉन ट्रेडिशनल पे जा रहे हैं, जो कि आपकी जैसे रिन्यूएबल एनर्जीज हो गई, जिससे आपका एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। और हाइड्रोजन फ्यूल भी मैंने आपको बताया, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन होता है, वो सबसे बेस्ट हाइड्रोजन होता है, क्योंकि ये आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता जब हम इसको बर्न करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, एनटीपीसी एंड मित्सुबिशी, इन दोनों के बीच में कभी एमओयू साइन हुआ फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग हाइड्रोजन को फायरिंग इन द पावर प्लांट। आई रिपीट, हाइड्रोजन को फायरिंग ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस इन गैस टर्बाइंस। इस पर्टिकुलर पर्पस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एमओयू साइन किया गया, एनटीपीसी लिमिटेड एंड मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच में। काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे डायरेक्ट न्यूज को। नेक्स्ट आ जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई, जेके ई कॉप। कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप की बात करें, वो रिलीज किया गया एट इंडिया एट 100। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी ने रिलीज किया एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स को इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट को। तो क्वेश्चन आ सकता है, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स की रिपोर्ट 2021 के लिए इंडिया की किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई,
NCRB। रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्ड करेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट, कहां पर? हजीरा, गुजरात में। देन इंडिया रेलवेज टू सेटअप मेघदूत मशीन्स इन मुंबई स्टेशन, एट मुंबई स्टेशन। देन टाटा स्टील ने एक MOU साइन किया पंजाब गवर्नमेंट के साथ टू सेटअप स्टील प्लांट, कहां पर? लुधियाना में। देन कैबिनेट ने अप्रूव किया एक MOU बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछ सकते हैं कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ अभी एक MOU साइन किया है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए वो कौन सी कंट्री है? वो है नेपाल। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स हमारे आज के रिवीजन के करंट अफेयर्स। चलिए चलते हैं फिर आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की। इन्होंने अभी 3 प्रपोजल्स को अप्रूव करा है वर्थ 4,276 करोड़ रुपीस। इनमें से जो 2 प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो तो हैं आपके इंडियन आर्मी के, और एक प्रोजेक्ट रहेगा इंडियन नेवी का। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर इसी की अगर हम यहाँ पे बात करें एक प्रोजेक्ट, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे वो है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको हम क्या नाम से भी जानते हैं? VSHORAD। ये लॉन्च किया गया है। ये एक आपका मिसाइल सिस्टम है जो एयर डिफेंस वेपन्स को इफेक्टिव बनाने के लिए काम किया जाता है। ये डिज़ाइन एंड डेवलप DRDO के द्वारा किया गया है। इसी के अलावा याद रखेंगे हेलिना क्या है? ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर्स एंड एसोसिएटेड सपोर्ट इक्विपमेंट है जो कि आपके इंटीग्रेट किए जाएंगे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में। ये जो प्रोजेक्ट्स है ना अप्रूव किए गए हैं अंडर द बाय इंडियन इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी के अंडर, मतलब इंडियन सी डिजाइन होने चाहिए, मैन्युफैक्चर होने चाहिए और डेवलप किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया 2023 का। यहाँ पे जो सबसे मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट निकल के आया वो किसका आया? जापान का। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया का पासपोर्ट की रैंक क्या रहेगी? 85th पोजीशन पे आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक। यहीं पे इंडिया जो इंडियंस हैं वो 59 डेस्टिनेशंस में, मतलब 59 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा उनको। अगर फिर मैं बात करूं 2019, 20, 21, 22 और 23 की, 2019 में जो इंडिया के रैंक थी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में वो थी 82, 20 में हो गई वो 84, 21 में 85, 22 में 83, और अब अगर हम बात करें 2023 में कितनी है? 85th पोजीशन पे। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। सेबी ने भी अलाउ किया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगर इसके बारे में बात करें तो अभी सेबी ने अलाउ किया स्टॉक एक्सचेंजेस को टू लॉन्च द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेसेस ऑफ कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज, जिनको रेट किया गया ऑफ रेटेड AA+ and above enhance liquidity in the bond market and provide opportunities to the investors to hedge their positions। फिर AAA रेटेड होते हैं, AA रेटेड होते हैं, BBB रेटेड होते हैं। तो इस हिसाब से आपके ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, इनमें भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई और उस रिपोर्ट का नाम था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस जनवरी 2023 के लिए। उस रिपोर्ट में बताया गया कि जो इंडिया है ना हमारा ग्रो करेगा बाय 6.6% इन द फिस्कल ईयर 24, मतलब 2023-24 की अगर हम बात करें तो इंडिया 6.6% से ग्रो करेगा। यही डाटा पहले रिलीज किया गया था, वो था 6.9% से इंडिया की ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड मैं आपको रफली बताऊं तो इंडिया 5 से लेकर 7% के बीच में इंडिया की GDP ग्रोथ रहेगी फॉर द फिस्कल ईयर 2024, मतलब 23 से 24 साल पीरियड के लिए। आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में रिसेशन आएगा, पूरी दुनिया एक स्लो डाउन के लिए ब्रेस कर रही है। आप देख लेंगे हर जगह जॉब कट्स चल रहे हैं, ले ऑफ्स चल रहे हैं, हायरिंग फ्रीज हो रखी है। तो ऐसे टाइम पे भी आप देखेंगे इंडिया की जो ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी ना, इंडिया एक पॉजिटिव उसमें रहेगा। अगर हम बात करें रेड और ग्रीन की, रेड आपका हो जाता है कि ग्रोथ नेगेटिव जा रही है और ग्रीन होता है पॉजिटिव जा रही है, तो इंडिया ग्रीन एरिया में रहेगा। और जहाँ पे हम देखेंगे बाकी कंट्रीज, वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज है, हम उनको नेगेटिव में देखेंगे। इवन आप अगर एक बात करें, कल परसों एक डाटा रिलीज आया कि जो सऊदी अरेबिया है वो
इंडिया से भी ज़्यादा जीडीपी पे ग्रोथ करेगा। रीज़न बीइंग, एक तो उनके जो अभी हम पेट्रोल के और जो ऑयल डीजल वो सप्लाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसकी वजह से जो उनके प्रॉफिट हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं। इवन ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स और ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स आप देखेंगे जो पेट्रोल की वजह से जो प्रॉफिट्स सऊदी अरेबिया ने गेन किए वो बहुत ज़्यादा है। इवन सऊदी अरेबिया, अभी अगर न्यूज़ आई हो आपने सुना हो, द लाइन की कंस्ट्रक्शन इन्होंने शुरू कर दिया जो इनका बहुत मैसिव प्रोजेक्ट है। इसी के साथ साथ इन्होंने WWE को भी खरीद लिया है। अभी न्यूज़ आई जो अब बहुत बड़ा एक फेमस फ्रेंचाइजी है आपकी रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी खरीद लिया है। इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपनी सऊदी अल नसार जो फुटबॉल क्लब है उसका पार्ट बना लिया है। तो आप देखेंगे जो सऊदी की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है कि ये कहीं ना कहीं इनकी जो इकोनॉमी है, जो पैसा इनके पास आ रहा है ऑयल को बेच के, वो बहुत ज़्यादा है। और इसी की वजह से आप देखेंगे इस साल इन पूरे चांसेस है कि सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी रहेगी, जो जीडीपी रहेगी, वो इंडिया से भी ज़्यादा रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन स्पेस की। इन्होंने कभी एमओयू साइन किया नेसेंट इन्फो टेक्नोलॉजीज के साथ फॉर जीआईएस एप्लीकेशन, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशंस के लिए। अभी रिसेंटली द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर जो इन स्पेस है, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया नेसेंट इन्फो टेक्नोलॉजीज के साथ। ठीक, ये आपके जो जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये क्या है? ये एक सिस्टम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि मैप करता है ना, एग्जामिन करता है चेंजेस ऑन अर्थ बाय एनालाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग द स्पेशल रिलेटेड डाटा फ्रॉम द रेंज ऑफ डाटा सोर्सेस। ठीक है, मतलब बेसिकली आपका मैप करने के लिए, उसमें जो चेंजेस आए हैं उसको पढ़ने के लिए, उस पर डिस्प्ले कराने के लिए, वो सारी चीज़ें उसको एनालाइज करने के लिए थ्रू द वेरियस डाटा सेट्स एंड सोर्सेज, ये आपका जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम रहता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं 80वें एनुअल ग्लोब अवार्ड्स की। ये 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स कहाँ पे हुए थे? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में हुए थे। दूसरा, इन अवार्ड्स के दौरान हमारा जो इंडिया की फिल्म थी RRR, इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के इनका जो गाना है नाटू नाटू, उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, आई रिपीट, RRR ये आपकी साउथ इंडिया की फिल्म है। इन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स पे ड्यूरिंग द 80th ग्लोबल गोल्डन अवार्ड्स 2023 के जो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में हुए, उसके दौरान इनके गाने को नाटू नाटू ने अभी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लेफिन एंड बंधन बैंक। इन दोनों ने अभी बेस्ट डिजिटल चैनल प्लेटफॉर्म अवार्ड को जीता फॉर द IBS इंटेलिजेंस। आई रिपीट, IBS इंटेलिजेंस से इन्होंने बेस्ट डिजिटल चैनल प्लेटफॉर्म अवार्ड को जीता कि इन्होंने क्लेफिन टेक्नोलॉजीज को, जो कि एक लीडिंग प्रोवाइडर है डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस सॉल्यूशंस की फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड बंधन बैंक जो है ये FB को अवार्ड किया गया। दोनों को, क्लेफिन टेक्नोलॉजीज एंड बंधन बैंक को, डिजिटल चैनल प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन या फिर बेस्ट डिजिटल चैनल प्लेटफॉर्म अवार्ड से सम्मानित किया गया फ्रॉम IBS इंटेलिजेंस। ठीक है, दिस रिकॉग्निशन वॉज द basis of the implementation of corporate internet banking by Clayfin as a part of Bandhan Bank's vision to enhance their digital services to the MSE sector. नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली इंडियन अमेरिकन AC चरानिया जी को अपॉइंट किया गया नासा का नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। आई रिपीट, ये किनको रिप्लेस करेंगे? भव्य लाल को ये रिप्लेस करेंगे। कौन? AC चरानिया जी, और इनको नासा का नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट अपॉइंट किया गया है। इसी से पहले अगर बात करें तो इससे ज्वाइन करने से पहले, नासा के ज्वाइन करने से पहले AC चरानिया जी, इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाली है ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रेटजी एट रिलायबल रोबोटिक्स, जो कि एक फर्म है दैट वर्क्स टू ब्रिंगिंग सर्टिफाइड ऑटोनोमस व्हीकल्स टू द कमर्शियल एविएशन। नेक्स्ट आ जाता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक एंटर्ड इनटू अ रिवाइज्ड पैक्ट विद मैक्स फिनसर्व, ताकि ये इनका एडिशनल 7% स्टेक को बाय कर सके इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। आई रिपीट, एक्सिस बैंक मतलब डायरेक्ट न्यूज़ क्या है, एक्सिस बैंक ने अभी एक पैक्ट इन्होंने साइन किया ताकि ये मैक्स फिनसर्व के 7% स्टेक को बाय कर सके इन मैक्स लाइफ। डायरेक्ट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर। इंडिया ने अभी एक सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च किया है पृथ्वी 2 का ऑफ द कोस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज फ्रॉम चांदीपुर ओडिशा। अगर मैं पृथ्वी 2 की बात करूं, ये आपकी एक न्यूक्लियर कैपेबल इंटीग्रेटेड ब्लास्टिक मिसाइल है। इसको ITR ऑफ द कोस्ट ऑफ चांदीपुर ओडिशा से टेस्ट किया गया। फिर इसकी बात करूं, इस मिसाइल ने स्ट्रक किया अपना टारगेट विद हाई एक्यूरेसी। दिस टेस्ट वाज डन टू टेस्ट द मिसाइल्स नाइट कैपेबिलिटीज। क्या ये रात को भी इतनी अच्छे से काम कर सकती है, ये टेस्ट करने के लिए इसको टेस्ट किया गया था। फिर इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा अंडर द प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर DRDO ने इस पृथ्वी 2 को डेवलप किया। फिर इसके बाद याद रखेंगे इसकी जो रेंज रहेगी वो कितनी है? 350 किलोमीटर की इसकी रेंज रहेगी। शॉर्ट रेंज है ना, इसीलिए। और फिर इसका जो पेलोड रहेगा 500 से लेके 1000 किलोमीटर तक, 1000 किलोग्राम तक का ये पेड ले सकता है। शॉर्ट रेंज है और ये आपकी सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल रहेगी। ठीक है, और ये किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा इसको यूज करा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नासा के टेस्ट मिशन ने अभी डिस्कवर की है सेकंड अर्थ साइज प्लेनेट इन द हैबिटेबल जोन। अगर मैं इसकी बात करूं, टेस्ट की फुल फॉर्म याद रखेंगे, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ठीक, अभी अगर हम बात करें तो TOI 700E उस प्लेनेट का नाम है जो कि अभी सेकंड अर्थ साइज प्लेनेट डिस्कवर किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? याद रखेंगे क्योंकि ये आपका एक TOI 700 सिस्टम में फाइंड किया जाता है। ये एक रेड ड्राफ्ट स्टार है जो कि कुछ 100 लाइट ईयर्स अवे है फ्रॉम अर्थ। यहीं पे ये आपका 700E डिस्कवर किया गया, TOI 700E। ये आपका 95% साइज ऑफ अर्थ रहेगा एंड ऑलमोस्ट रॉकी प्लेनेट है। इसको ऑर्बिट करने के लिए 28 दिन लगते हैं टू टेक 1 सर्कल अराउंड द देयर रेड ड्वार्फ सन। इसी के अलावा 3 और प्लैनेट्स डिस्कवर किए गए थे, वो थे 700B जो कि 90% साइज ऑफ द अर्थ है और हर 10 दिन में ये ऑर्बिट करता है अपने स्टार को। 700C 2.5 टाइम्स है अर्थ का और ये हर 16 दिन में ऑर्बिट करता है। 700D आपका अर्थ साइज्ड है और ये 37 डेज लगता है टू ऑर्बिट देयर रेड ड्वार्फ स्टार। नेक्स्ट आ जाते हैं वनवेब की। वनवेब हम जानते हैं ये यूके बेस्ड कंपनी है। ठीक, वनवेब के द्वारा अभी फिर से 40 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई फ्रॉम द स्पेसएक्स फ्लोरिडा स्पेस सेंटर। और हम जानते हैं इससे पहले भी कुछ टाइम पहले ही स्पेसएक्स ने अपनी फैल्कन 9 रॉकेट से 40 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी वनवेब की, जो कि यूके बेस्ड सैटेलाइट बेस्ड कंपनी रहेगी। दिस मार्क्स वनवेब्स 16th लॉन्च with 2 more launches will complete the OneWeb's first generation constellation enabling global connectivity in 2023. With 542 satellites in orbit, OneWeb has made more than 80% of its first generation constellation launched. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करते हैं, हम जानते हैं हॉकी का FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? ये आपका उड़ीसा में हो रहा है। उड़ीसा में कहाँ पर होगा? राउरकेला में होगा और भुवनेश्वर में होगा। फिर आपको याद रखना है इंडिया का बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम क्या नाम रहेगा उसका? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। क्या है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर रहेगा आपका? ये है आपका राउरकेला उड़ीसा में और ये इंडिया का बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम है। ये लॉन्च किया गया क्यों? क्योंकि इंडिया में 2023 में हमें FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप अभी देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी एक और चीज़ लॉन्च की गई है हॉकी इंडिया के द्वारा और ये वो पहला स्पोर्ट्स फेडरेशन बन गया है जिन्होंने मेटावर्स को लॉन्च, या फिर हम कहें मेटावर्स नहीं, हॉकी वर्स को लॉन्च किया है, जो कि इंडिया का पहला नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बन गया टू एंटर इनटू अ मेटावर्स। ठीक है, ये रहेगा आपका हॉकी वर्स। इस हॉकी वर्स पे क्या होगा? बेसिकली आप पुराने मैचेस को देख पाएंगे, घर बैठे बैठे आप एक डिजिटल एक्सपीरियंस ले पाएंगे, आपका एक नया वर्चुअल एक्सपीरियंस यहाँ देखने को मिलेगा। इवन सच एज रेप्लिका ऑफ द न्यूली बिल्ट बिरसा मुंडा स्टेडियम भी आपको यहाँ देखने को
मिल सकता है। ठीक है, ऑनलाइन ही आप इसका रेप्लिका को देख पाएंगे घर बैठे बैठे। ऑल्सो यहाँ पर एक आप इस मेटावर्स में आप देखेंगे, हॉकीवर्स में ही एक टाइम मशीन लाई गई है जिसके बेसिस पे आप इजीली जैसे पुराने जो आपके मैचेस हैं, जो एक्सपीरियंसेस है, आप उनको विजिट कर सकते हैं घर बैठे बैठे। ठीक है, तो हॉकी इंडिया ने लॉन्च किया है ये हॉकीवर्स बिफोर द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, जो 2023 में अभी जनवरी फरवरी में होगा, ओडिशा में होगा, राउरकेला भुवनेश्वर में होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीस के लास्ट किंग एंड 1960 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कॉन्स्टेंटिन टू की। इनका रिसेंटली अभी निधन हो गया। अगर इनकी बात करें तो इनका निधन हुआ है एट द एज ऑफ 82। कहाँ पर? एथेन ग्रीस में। ठीक, और इनकी ये बॉर्न हुए थे ऑफ किंग पॉल वन, यंगर ब्रदर टू किंग जॉर्ज टू। ऑलराइट, हाईली इंपॉर्टेंट। चलिए, और इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंस हैरी की। प्रिंस हैरी ने अभी अपना मेमोर रिलीज किया जिसका टाइटल रहेगा स्पेयर। अगर आपको याद हो, अभी न्यूज़ में था कि प्रिंस हैरी ने 10 से 15 सोल्जर्स को मारा था इन ड्यूरिंग सीरिया वॉर, जब ये सीरिया में कमीशन थे। लेकिन ये अपनी बुक में ये बताया गया, इवन आप देखेंगे ये जो चीज़ें की जाती है ना, पब्लिसिटी के लिए की जाती हैं पहले, ताकि आपकी बुक को एक थोड़ा सा मार्केटिंग का पंप मिल सके, एक थोड़ा सा बूस्ट मिल सके। इवन जो अमाउंट ऑफ मनी ये इस अपने मेमोर से जनरेट करेंगे, इन्होंने अपनी लोगों के सोशल फाउंडेशन के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए ये आगे इस पैसे का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जो इनका चैरिटेबल फाउंडेशन है वहाँ पर इस मनी को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि लोगों की यहाँ पर हेल्प की जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल रोड सेफ्टी वीक की। 11 से लेकर 17 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल रोड सेफ्टी वीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। फिर पूछा जाए क्यों ऑब्जर्व करना जाता है, ताकि रोड सेफ्टी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया जा सके और इससे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट से भी बहुत लोगों की जानें जाती हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है। किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और इस साल 2023 में हमने 34वां नेशनल रोड सेफ्टी वीक को ऑब्जर्व किया। स्वच्छता पखवाड़ा ये आपकी थीम रहेगी, जो आपको याद रखना है। क्या? स्वच्छता पखवाड़ा आपकी थीम रहेगी फॉर दिस वीक। एंड इसी के साथ साथ ये तो हो गया नेशनल सेफ्टी वीक। अगर मैं आपकी बात करूं ग्लोबल सेफ्टी वीक, ग्लोबल सेफ्टी वीक की अगर मैं बात करूं, वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 13 से लेके 17 मई के बीच में हम ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबल सेफ्टी वीक को। ठीक है, और वो होता है ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। ठीक है, इसको ये हो गया नेशनल रोड सेफ्टी वीक और ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 13 से 17 मई। ये आप देख सकते हैं थीम क्या है, स्वच्छता पखवाड़ा। तो दोस्तों फिर आ जाते हैं आप कुछ स्टेट न्यूज़ पे। जैसे जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, इनको अपॉइंट किया गया अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। हाईली इंपॉर्टेंट, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट असम। एंड ये चार्ज लेंगे 12 जनवरी 2023 को आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ इंक्यूबेंट जस्टिस RM छायाजी ऑन 11 जनवरी 2023। ठीक, अगर मैं हाई कोर्ट जज की बात करूं तो 62 साल की एज में रिटायरमेंट हो जाती है, और सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करूं तो 65 साल की एज में इनकी रिटायरमेंट होती है। तो आइए अब करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं वन बाय वन। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया प्रपोजल वर्थ 4,267.76 करोड़ रुपीस फॉर इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी। 2 प्रोजेक्ट्स रहेंगे इंडियन आर्मी के और 1 प्रोजेक्ट रहेगा इंडियन नेवी का। फिर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ पर इंडिया पासपोर्ट की रैंक रहती है 85 और यहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री दी गई टू 59 डेस्टिनेशंस वर्ल्ड वाइड। हिताची पेमेंट सर्विसेज की बात करें, इनको RBI का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। सेबी ने अलाउ किया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स, और काफ़ी लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं इवन इन इंडिया।
World Bank report Indian economy to grow at a robust 6.6% in the fiscal year 24. 2023 से 2024 की बात की जा रही है और यहाँ पे पहले जो प्रोजेक्शन थी वो थी 6.7% की, बट अब उसको रिड्यूस करके 6.9% की, जिसको रिड्यूस करके अब 6.6% कर दिया गया है। इन स्पेस ने अभी एक MOU साइन किया नेसेंट इन्फो टेक्नोलॉजीज के साथ फॉर द GIS एप्लीकेशन। 80वें एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे नाटू नाटू जो RRR का सॉन्ग है उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्लेफिन एंड बंधन बैंक इन्होंने बेस्ट डिजिटल चैनल प्लेटफॉर्म अवार्ड को जीता फ्रॉम IBS इंटेलिजेंस। इंडियन अमेरिकन AC चरानिया जी, इनको अपॉइंट किया गया नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे। एक्सिस बैंक एंटर्ड इनटू अ रिवाइज पैक्ट विद मैक्स फिनसर्व टू एक्वायर एडिशनल 7% स्टेक इन मैक्स लाइफ। इंडिया कैरीज आउट सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च ऑफ पृथ्वी 2 फ्रॉम चांदीपुर ओडिशा। नासा के टेस्ट मिशन ने भी डिस्कवर किया सेकेंड अर्थ साइज प्लैनेट को इन द हैबिटेबल जोन। OneWeb launches 40 satellites from SpaceX फ्लोरिडा स्पेस सेंटर। नेक्स्ट आ जाता है हॉकी इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया हॉकीवर्स को, जो कि पहला नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बन गया टू एंटर इनटू अ मेटावर्स। ग्रीस के लास्ट किंग एंड 1960 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कॉन्स्टेंटिन II, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। प्रिंस हैरी ने रिलीज किया अपना मेमोर जिसका नाम है स्पेयर। नेशनल रोड सेफ्टी वीक ये ऑब्जर्व किया जाता है 11 से लेके 17 जनवरी के बीच में। और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह, इनको अपॉइंट किया गया एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक रिसीव्ड द RBI अप्रूवल टू होल्ड स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स ऑफ 3 बैंक्स फ्रॉम श्रीलंका। अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द कास्ट बेस्ड सेंसस। थर्ड, विच स्टेट हैज वन द UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जागा मिशन। फोर्थ, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द पोर्टल फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज। फिफ्थ, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द फूड प्राइस इंडेक्स। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द असाइनमेंट। आपको अब सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे ऐसे सेशन पे, क्या आप चाहते हैं हम ये वीडियो कंटिन्यू रखें तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऑल्सो अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लें। हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करते हैं, वीकली बेसिस पे एंड मंथली बेसिस पे। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज भी अपलोड करते हैं। टॉपिक हमारे होते हैं जैसे इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट डेज, इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक भी हम यहाँ पे कवर करते हैं आपका। फिर आपके एप्स एंड वेब पोर्टल्स, कोई अपॉइंटमेंट हो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी से रिलेटेड, वो सारे करंट अफेयर्स यहाँ हम आपके प्रोवाइड करते हैं। आपको हमारी और वीडियो देखनी हो तो आप यूट्यूब सर्च बार में जाके करंट अफेयर्स बाय विकास राणा के नाम से सर्च कर सकते हैं। आपको हमारा चैनल अफेयर्स क्लाउड मिल जाएगा, जहाँ पे आप हमारी सारी वीडियोस को ईजिली देख पाएंगे। इसी के अलावा आप क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्विज़ में आपके बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन होती है, जहाँ से आपको 20 से 25 करंट अफेयर्स मिलते हैं डेली के, जो बहुत अच्छे से आपके रिवीजन करा देते हैं। वो आप चेक कर सकते हैं हमारे कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे। प्ले स्टोर से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप हमारी वेबसाइट पे भी, कैरियर्स क्लाउड की वेबसाइट पे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। पेड कोर्स रहते हैं ये आपके, तो आप वहाँ पे कोर्सेज को जाके भी चेक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends,
If you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.